Hello everyone, how are you? I hope you are all doing well. So in today's lecture, we are going to solve some more questions based on the concept electromagnetic induction. Okay. So first question is given as a circular coil of radius 8.0 centimeter and 20 turns is rotated about its vertical diameter with an angular speed of 50 radian per second in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 3.0 into 10 to the power minus 2 Tesla. Obtain the maximum and average induced average EMF induced in the coil. If the coil forms a closed loop of resistance 10 ohm, calculate the maximum value of the current in the coil. Calculate the average power loss due to the Joule heating, and where does this power come from? So these are the questions we have to solve. So first of all, what is given here? The radius of the circular coil. Radius of the circular coil is R equals to 8.0 centimeter, or it can be written as 8.0 into 10 to the power minus 2 मीटर. ठीक है. उसके बाद क्या दिया? नंबर ऑफ टर्न्स इज 20. सो टर्न्स इज n equals to 20 turns, and its vertical diameter with an angular speed of 50 radian per second. So angular speed, what is the angular speed? It is 50 radian per second. And the uniform horizontal magnetic field is given as 3 point magnetic field. Magnetic field is, it is 3.0 into 10 to the power minus 2 Tesla. And whatever is given, or resistance also given. Okay. So resistance is R equals to 10 ohm. This is all given. So now we have to find out, in first case, the maximum value of induced EMF in the coil. So as we know that here the angular speed is given. So therefore, first of all, what will be the flux? Flux will be magnetic flux, right? Magnetic flux is phi B equals to B vector dot A vector. This is the magnetic flux. Now it can be written as phi B equals to BA cos theta. This is the case where B is the magnitude of magnetic field vector and A is the magnitude of area vector. And theta is the angle between area vector and magnetic field. तो अब यहाँ पे अगर वो जो सर्कुलर कोइल है वो रोटेट कर रही है विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड 50 रेडियन पर सेकेंड, तो जो थीटा है वहां पे उसको लिख सकते हैं कि थीटा विल बी, वेट, थीटा कैन बी रिटन एज ओमेगा टी. ठीक है, ओमेगा टी की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है. तो अब फ्लक्स का इक्वेशन क्या बन जाएगा? वाई बी विल बी बी ए कोस ओमेगा टी. दिस विल बी द इक्वेशन. अब ये इक्वेशन बन गया. अब हमें फाइंड आउट करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कहता है कि इंड्यूस्ड induced EMF is E equals to minus d phi b upon dt. This is the induced EMF. Now, we will substitute the equation of phi b, that is BA cos omega t. ठीक है. अब इस इक्वेशन के बाद अपने पास इसका नेक्स्ट
इक्वेशन क्या बनेगा, माइनस बी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, सो डिफरेंशिएशन विल बी ओवर ओनली कांस्टेंट, सॉरी, ओनली ओवर cos ओमेगा टी। अब cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एज वी ऑल नो, minus BA is minus BA same as it, and it will be minus sin ओमेगा टी, एंड ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा अपने पास आएगा। तो यहां से ईएमएफ का इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन क्या आ गया है, बी ए, सॉरी, एक एक कमी रहेगी यहाँ पे इस इक्वेशन में जो हर बार रह जाती है। इट इज एज पर द फेराडेज, वन सेकेंड, एज पर द फेराडेज electromagnetic induction, it is not only d phi upon dt. In case of there are more than one turns, so we have to take them consideration also. So it will be minus n d phi upon dt. So n will also be there, so it will be n also be there, so it is nba, and in the next equation also it will be ba or nba omega sin omega t. This will be the equation of EMF, induced EMF. ठीक है। अब इस इक्वेशन से हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, सो फर्स्ट फर्स्ट विल बी मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कब होगा, जब अपने पास साइन ओमेगा टी का जो वैल्यू है वो होगा +1। ठीक है, तभी अपने पास मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, एंड एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट है। तो अब इस केस में ओनली वेरिएबल टर्म है जो साइन ओमेगा टी की है, उसको +1 होना पड़ेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो मैक्सिमम आएगा वो क्या होगा, ई मैक्स विल बी इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा। दिस विल बी द इक्वेशन। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो अपने पास आएगा ई मैक्स विल बी, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ टर्न्स इज 20, 20, एंड मैग्नेटिक फील्ड है 3.0 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला, और एरिया जो है वो सर्कुलर कोइल है तो उसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सो पाई इंटू आर कितना दिया है, 8.0 इंटू 10⁻⁻² मीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। एरिया आ गया। अब एंगुलर स्पीड बचा, एंगुलर स्पीड इज 50, 50 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और ई मैक्स है ईएमएफ, सो इसका यूनिट है वोल्ट। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से सोल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास 50 है, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो वो हो जाएगा 1000। ओके, सो 1000, और उसके बाद 3 × 10⁻⁻² सेम रहने देते हैं, पाई, और उसके बाद ये हो जाएगा 64 × 10⁻⁻⁴ अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अपने पास आएगा ई मैक्स विल बी इक्वल्स टू 0.603 वोल्ट्स। सो इतना अपने पास उसका मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब सेकंड केस में इसमें क्या पूछा है, फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कोइल इफ द कोइल फॉर्म से क्लोज्ड, if the coil forms a closed loop of resistance 10 ohm
of resistance 10 ohm, then what will be the maximum current in the coil? तो अब हमें इसमें मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम ईएमएफ है अपने पास 0.603 वोल्ट्स। और ओके, हाँ, एक क्वेश्चन और बच गया इसमें। obtain द मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो एवरेज एवरेज ईएमएफ इसमें क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन, एवरेज ईएमएफ। तो एवरेज ईएमएफ इसमें फाइंड आउट करना है, तो अपने पास जो इक्वेशन आया है, सिंस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज E इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन अपने पास। अब इसमें से एवरेज अगर निकालना है तो दोनों तरफ एवरेज लेते हैं। एवरेज ईएमएफ इज ई एवरेज इक्वल्स टू, अब इसका जो एवरेज आएगा वो क्या होगा? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसका एवरेज। तो यहां से जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर आ जाएगी। तो इक्वेशन क्या बनेगा? ई एवरेज विल बी एन बी ए ओमेगा एंड एवरेज विल बी ऑन साइन ओमेगा टी। और हमें पता है कि साइन ओमेगा टी है, उसका जो टाइम एवरेज होगा वो कितना होता है? 0। सो वी ऑल नो दैट इट इज 0, बिकॉज टाइम एवरेज है इसका, वो 0 होता है। तो यहां से जो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा वो कितना होगा? दैट विल बी एन बी ए ओमेगा इंटू 0, एंड दैट्स वाई एवरेज ईएमएफ हो जाएगा यहाँ से 0 वोल्ट्स। तो इतना उसका एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट है तो वो कैसे निकालेंगे? थर्ड क्वेश्चन, मैक्सिमम द मैक्सिमम इंड्यूस्ड मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, जो मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट है वो अपने पास कितना आएगा यहाँ से? आई मैक्सिमम विल बी ई मैक्सिमम अपॉन द रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो आई मैक्सिमम यहाँ से कितना आ जाएगा? आई मैक्सिमम विल बी, ई मैक्सिमम कितना है? 0.603, और रेजिस्टेंस कितना दिया है? 10 ओम। तो इतना इसका करंट आ जाएगा, मैक्सिमम करंट। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास कितना आएगा? आई मैक्सिमम विल बी 0.0603 एम्पियर। इतना यहाँ पे अपने पास मैक्सिमम करंट आ जाएगा इसमें, मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि calculate the maximum value of the current that we have done. Calculate the average power loss due to joule heating, and where does this power come from? First of all, let me calculate the average power. ठीक है, एवरेज पावर के कॉन्सेप्ट में हमें पता है कि एवरेज पावर का इक्वेशन क्या होता है। द एवरेज पावर का इक्वेशन क्या होता है? पी एवरेज इक्वल्स टू
ई मैक्स, आई मैक्स एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसका सिंपल रीजन है कि अपने पास जो करंट का इक्वेशन रहता है, ठीक है, इसका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ अलग से। क्योंकि पावर का जो इक्वेशन है वो क्या होगा अपने पास, ईएमएफ इनटू करंट। समझ में आया? अब ईएमएफ अपने पास क्या है, मान लो कि उसका जो पहले वाला टर्म था ई नोट था, यानी कि जो एन बी ए ओमेगा है, बाकी वाला क्या बच गया अपने पास, साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसी को अगर रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो करंट बन जाएगा। तो अपने पास सेकंड टर्म भी क्या आ गया, ई नोट, या फिर उसको करंट वाले इक्वेशन है तो करंट को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस आएगा उसको जस्ट लिख दो कि ई नोट अपॉन आर है, उसको आई नोट लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर ये जो ई नोट है वो ई मैक्स भी बोल सकते हैं इसको, और ये आई है वो इसको आई नोट, आई मैक्सिमम, आई मैक्सिमम या फिर आई नोट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर भी क्या आएगा, साइन ओमेगा टी आएगा। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगा, ई नोट आई नोट और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर एवरेज लेंगे, पावर का एवरेज, तो ई नोट और आई नोट तो कांस्टेंट है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसका अगर एवरेज लेंगे तो इसका एज वी ऑल नो दैट इट इज 1/2। तो यहाँ से इसका इक्वेशन आता है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो पी एवरेज कितना आएगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो पी एवरेज विल बी, ई मैक्सिमम का कितना वैल्यू आया था, 0.603 वोल्ट्स, और आई मैक्सिमम के कितना है, 0.0603, और रेज यहाँ पे डिवाइड में 2, और किस में होगा, ये वोल्ट्स में होगा, सॉरी वोट्स में होगा। तो एवरेज पावर का इक्वेशन अगर आप सोल्व करोगे तो इट विल बी 0.018 वोट्स। इतना इसका एवरेज पावर का वैल्यू आ जाएगा अपने पास। अब बात करते हैं कि इसमें कि ये पावर आई कहाँ से। देखो, जो सर्कुलर वायर है यहाँ पे, क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस, दिस एंड दिस टर्न्स इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विद एन एंगुलर स्पीड, दिस एंड दिस। तो जो सर्कुलर वायर है वो जब मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा तो उसके अगेंस्ट एक टॉर्क जनरेट होगा। ठीक है, तो उस टॉर्क को, वहां पे जो टॉर्क जनरेट हो रहा है उसके अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो वर्क डन, अगर हम जो एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं उसी की वजह से हमें वहां वहीं से पावर मिलेगा, यानी कि ड्यू टू सम एक्सटर्नल मीन्स, लाइक ड्यू फ्रॉम वेयर द coil is rotated, so from that source only we get the power, and that power is going to dissipate. अब एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 is such as, let me see, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर ऑफ 10 मीटर लॉन्ग, ऑफ 10 मीटर लॉन्ग, एक सेकंड इसका थोड़ा रिसाइज कर देता हूँ। ठीक, अब ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर ऑफ 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज falling with the speed of 5.0 मीटर पर सेकेंड। सॉल्यूशन इज, साथ साथ लिखते जाते हैं। देखो, लेंथ कितना है वायर का, लेंथ इज 10 मीटर, एंड व्हाट इज द स्पीड, स्पीड इज 5.0 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब नेक्स्ट, east to west is falling with a speed of 5.0 meter per second at right angles to the horizontal component of Earth's magnetic field। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो दिया है वो कितना है,
B equals to 0.30 into 10 raised to the power minus 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये इतना इसका मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। नाउ दे आर आस्किंग इन द फर्स्ट पार्ट दैट व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वायर। देखो ये जो वायर है अपने पास, अगेन कौन सा केस है इसमें, मोशनल ईएमएफ लगेगा। मोशनल ईएमएफ में क्या होता है अपने पास, जैसे कि ये केस दिया है तो इसमें पहले डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। देखो ये कोई वायर है और ये वायर ईस्ट टू वेस्ट है, लाइक ये डायरेक्शन कौन सा हो गया अपना, ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। और ये फॉल कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसका कुछ स्पीड है v। ठीक है, इसका v वेलोसिटी है या फिर इसका स्पीड है, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रहा है एट राइट एंगल्स टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ ये राइट एंगल पे है, 90 डिग्री पे है। ठीक है, और उसका जो कंपोनेंट हमें दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड है समथिंग, जो मैग्नेटिक फील्ड है 0.30 इंटू 10 पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, उसके ऊपर मिल रहा है। तो इस केस में अपने पास, जब अपने पास लेंथ, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तब अपने पास जो मोशनल ईएमएफ आता है, जिस मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आता है, उसका इक्वेशन क्या होता है। इन पार्ट ए लेट मी राइट द इंस्टेंट द इंस्टेंटेनियस the instantaneous EMF, induced EMF in the wire, वो कितना होगा। As we know that the equation says that EMF is BLV, where B is the magnetic field, L is the length and V is the velocity। आप वैल्यूज अगर पुट करते हैं तो अपने पास आता है 0.30 इंटू 10 to the power -4। लेंथ कितना है इसका, 10 मीटर, और वेलोसिटी कितना है, सम 5.0, ओके 5 एंड वोल्ट्स। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगा इसका, ई विल बी 5 मल्टीप्लाइड विद 0.30 विल बी 1.5 एंड 10 to the power -4 इंटू 10 विल बी 10 to the power -3 वोल्ट्स। तो इतना इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर आपको इसको मिली वोल्ट में भी करना है तो भी करेक्ट होगा, लाइक इट विल बी ई विल बी मिली वोल्ट, ये भी सही है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या बोले, पार्ट बी में व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। वेरी गुड। इस क्वेश्चन में देखो, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहां से आएगा, लेंज लॉ से। लेंज लॉ क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सच दैट it will oppose the cause of its production। ठीक है, तो उसका कॉज ऑफ प्रोडक्शन है, उसका उसको ये अपोज करना चाहिए। ठीक है, तो यहां से जो पहले क्या दिया क्वेश्चन में देखो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अगर वो ईस्ट टू वेस्ट में एक्सटेंड कर रहा है तो उसका जो मैग्नेटिक सॉरी जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन का होगा। तो हमें यहाँ से क्लू मिल गया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा यहाँ पे, उसका डायरेक्शन क्या होगा, वेस्ट टू ईस्ट। पार्ट सी में क्या दिया हुआ है, पार्ट सी में विच एंड ऑफ द वायर इज एट द हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। देखो एक चीज हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम
हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट वी ऑल। वो कब होता है? अब देखो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट है। दैट मीन्स करंट का डायरेक्शन क्या होता है, द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अगर वेस्ट टू ईस्ट है, तो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन का डायरेक्शन क्या होगा, ईस्ट टू वेस्ट। अगर इलेक्ट्रॉन्स ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स द हायर पोटेंशियल इज एट ईस्टर्न एंड। सो देयरफॉर द higher potential is at eastern end of the wire. Okay, now we are going to solve another question number 3. In this question, it is little bit different from these previous two questions. Let me see. A pair of a pair of adjacent a pair of adjacent coils a pair of adjacent coils has a mutual inductance of 1.5 Henry. So solution is म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है, m equals to 1.5 Henry. If the current in one coil changes from 0 ampere to 20 ampere, okay, यानी कि coil 1 में जो करंट है वो चेंज हो रही है 0 एम्पियर टू 20 एम्पियर, and the time is given as 0.5 seconds. So let me write current in coil 1, ये कहाँ से चेंज हो रही है, I let me write it I1I, यानी कि कोइल 1 में इंड्यूस्ड करंट, सॉरी कोइल 1 में जो करंट है, इनिशियल करंट वो कितनी है, 0 एम्पियर, एंड उसमें जो फाइनल करंट है वो कितनी है, 20 एम्पियर, एंड टाइम कितना ले रही है, 0.5 सेकेंड्स। व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कोइल, दूसरे कोइल में फ्लक्स लिंकेज कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट में हमें पता है कि व्हाट विल बी द फ्लक्स लिंकेज इन द अदर कोइल। सो लेट मी राइट द flux linkage in other coil is, वो कितना होगा, phi 2 will be equals to m into I1। ठीक है, इतना उसमें फ्लक्स लिंकेज होगा। नाउ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज, ओके, वो हमें फाइंड आउट करना है। द चेंज इन फ्लक्स लिंकेज, तो अगर दोनों तरफ चेंज लेते हैं इसमें, तो अपने पास क्या इक्वेशन आएगा, डेल्टा phi 2 will be equals to, since that mutual inductance is constant, so only current is going to change, so delta I1। और यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा अपने पास, डेल्टा phi 2 will be equals to m into चेंज करंट में क्या हो रहा है, I1F माइनस I1I, ये उसमें करंट का चेंज आ रहा है। सो डेल्टा phi 2 विल बी, m का वैल्यू कितना दिया हुआ है इसमें, इट इज 1.5 हेनरी, सो वैल्यू पुट करते हैं 1.5। फाइनल करंट कितना है, 20 एम्पियर, इनिशियल करंट कितना है, 0,
and phi 2 will be Weber. Now multiply this, we will get the answer. Delta phi 2 is del phi 2 will be equals to 1.5 multiplied by 20, it will be 30 Weber. So this is the value of flux change, or we can say this is the value of flux. This is the value of change in flux linkage with the other coil due to the current change in the first coil. That's how we can solve problems based on the electromagnetic induction concepts. And if you have any other doubt related to the electromagnetic topic, you can ask me in the comment section. We will solve there or in the next video. Thank you.